أن يجمعنا بهذا المبارك. فأشكر الله أولا، ثم أشكر الضيف المبجل الأستاذ محمود عبد الرحمن بأنه شرفنا بقدومه المدينة. سيلقي إن شاء الله محاضرته حول فرص لطلاب اللغة العربية إن شاء الله. فأرحبكم وأرحب الضيف الكريم. فأدعو الأخ إمام الدين أن يبدأ جلسة بتلاوته الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. شكرا. وبعد الخميس من ضيف المبجل أن يبدأ محاضرته بأي لغة يريد. شكرا جزيلا سعادة الأستاذ الدكتور بنشير رئيس الحفلة ورئيس هذه المحاضرة البروفيسور محمد الشاهد حفظه الله. أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मैं शुरू में ही आपको ये बात बता दूं कि जो मौजूद आज मुझे दिया गया है उस पर मैं गुफ्तगू कुछ अरबी में भी करूँगा, उसके बाद इंशाअल्लाह उर्दू में अपनी बातें करूँगा. فكما تعلمون أن عنوان هذه المحاضرة هو آفاق اللغة العربية والفرص التي تعتبر بكونها متاحة لنا كطلاب في هذه اللغة أن ننتهزها حتى نصل إلى مبتغانا وهدفنا من اختيار هذه اللغة كمادة دراسية. فكما تعلمون أن هذه اللغة تحظى بأهمية كبيرة جدا من نواحي شتى. فالناحية الدينية هي معروفة للجميع، معروفة لنا بالطبع بكوننا طلاب المدارس أو بكوننا مسلمين، لأن لغة القرآن ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث النبوي بهذه اللغة، وكل مآثرنا متوفرة لدينا بهذه اللغة. هذه الأهمية الدينية. ولكن لو حاولنا أن نلقي الضوء على أهميتها من شتى النواحي التاريخية أو الاستراتيجية أو الاقتصادية أو العلمية بحد ذاتها فإن لها أهمية كبيرة جدا. والآفاق المتفتحة من خلال هذه اللغة والفرص المتاحة لنا
التي بإمكاننا أن ننتهزها ونظفر بها إذا استطعنا إيجاد هذه اللغة، فإنها واسعة، بل أجد أنها تفتح أبوابا ونوافذ مختلفة حتى يستطيع الإنسان أن يصل إلى الهدف المنشود. إذا حاولنا أن ننظر إلى هذه اللغة من الناحية التاريخية فإنها تكتسب أهمية كبيرة جدا، لأن تاريخ تلك الخطة، تلك المنطقة التي تسمى الجزيرة العربية هي متوفرة بتلك اللغة. يعني إذا الإنسان حتى نجد ترجمة عديدة لتاريخ الأدب العربي أو تاريخ المتحدثين بها وما إلى ذلك، ولكن إذا لم نستطع أن نفهم كل أحاسيسهم ومشاعرهم بتلك اللغة التي تحدثوا بها أو اللغة التي كانت هي لغة الأم، لا نستطيع أن ندخل أو نصل إلى عمق أو نستطيع أن نفهم مفاهيم تلك التضاريس التي عاشوا فيها. فكما قيل بأن الشعر وديوان العرب، يعني نستطيع أن نعرف تاريخ العرب من خلال دراسة الأبيات الشعرية، من خلال دراسة الأدب العربي الذي نجد تاريخ هذا الأدب قبل بداية العهد الإسلامي حوالي 200 سنة كما يقولون، رغم أن اللغة نجد أنها في عنفوان شبابها في تلك اللحظة، مع العلم أن هذه اللغة لم تصل إلى هذا المستوى في هذه المرحلة. يعني أن كلما نجد أن التاريخ إذا ظل ساكتا أو صامتا ليس لديه شيء حتى يوفر لنا ما كان قد حدث في تلك المنطقة أو ما كان واقع تلك المنطقة في ذلك الوقت، فهذا يعتبر أن التاريخ هو السبب وراء عدم معرفتنا لواقع تلك المنطقة. فالتاريخ ظل صامتا وساكتا، مع أن كلما قد وجدناه قد دون بعد مرور قرنين تقريبا، وكلما قد دون نجد أن كان فيها التباسات، فيها أشياء محرفة وفيها أشياء، ولكننا حاولنا أن ننظر إليها من نواحي شتى، نواحي أدبية، نواحي تاريخية، نواحي اجتماعية، وحاولنا أن نستنتج كل تلك النقاط ووضعناها أمامنا، ومن ثم انتقلنا إلى المراحل الأخرى. فالنوع التاريخي والجهة التاريخية مهمة جدا لمعرفة الوضع الاجتماعي والوضع السياسي والوضع الديني والوضع الاقتصادي، يعني الأوضاع تلك المنطقة لا نستطيع أن نعرفها إلا من خلال هذه الناحية التاريخية. فعندما نستطيع أن نلم بذلك نستطيع أن نستنتج العديد من النقاط التي تكتسب أهمية والتي قد تعود بالفائدة بالنسبة لنا. أما من الناحية الاستراتيجية فكانت تلك المنطقة من ذلك الزمان تحظى بأهمية كبيرة حتى إلى يومنا هذا. نجد أن الولايات المتحدة، يعني الدول النامية الكبرى، تنظر إليها بعيون الطمع كلما تريد أن تحصل يعني النفط، يعني الذهب الأسود الذي خرج من تلك المنطقة، كان سببا بل يظل سببا رئيسا للوضع السياسي والوضع الجغرافي الحالي في تلك المنطقة. كيف انهم يريدون الاطاحة بأنظمة عديدة ويريدون تثبيت أفراد سياسيين تابعين لهم، كل هذا لاستغلال الوضع الاستراتيجي الذي تحظى به تلك المنطقة. أما من الناحية الاقتصادية فكما ذكرت
بأن النفط هو السبب الرئيسي. وكذلك الرؤى الجديدة المنبعثة من تلك المنطقة هي أيضا تبشر بوجود خير كثير نابع من تلك المنطقة. فبإمكاننا كطلاب في منطقة بعيدة جغرافيا عن تلك المنطقة أن نستفيد ونستغل هذه الفرص، لأنها تفتح أبوابا جديدة بالنسبة لنا من الناحية الاقتصادية. وبعد التعرف على أوضاعهم بإمكاننا أن نستفيد من الوضع الاجتماعي السائد فيه ومحاسن الأخلاق التي كانت متواجدة أيام الرسول أو قبل ذلك أو بعد ذلك. يعني نستفيد من تلك المنطقة ومن جوها السياسي من جوها الاجتماعي والاقتصادي، ونحاول أن نفرضها على أنفسنا حتى نجد الأشياء التي نسعى من خلالها. يعني الشخص الذي يدرس اللغة العربية ليس هدفه فقط أنه يستطيع أن يكتسب من خلال ذلك يعني من الناحية المادية فقط، لا، هذا ليس الأمر على يعني منطبق على هذه اللغة. لماذا؟ لأن هذه اللغة وراءها جذور دينية تاريخية اجتماعية وما إلى ذلك، وكل هذا ليس إلا عبارة عن أننا يجب علينا أن نستفيد ونستغل من تلك الفرص، والفرص متاحة بالنسبة لنا. فكما تعلمون وأنتم طلاب هذه اللغة كيف أن هذه اللغة قد فتحت أبوابا جديدة بالنسبة لنا من شتى النواحي. بإمكاننا أن نستغل من منظور الهند إذا حاولنا أن ننظر إلى الفرص المتاحة بالنسبة لنا حتى نستطيع أن نكسب الرزق والقوت كما تعلمون. فهذه اللغة تعتبر لغة حية وهي لغة لن تموت أبدا. وهذا كل ذلك كما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى قد حفظ هذه اللغة من الاندثار والضياع. ولو قارنا باللغات الأخرى نجد أن اللغات الأخرى قد تغيرت، حتى الإنجليزية التي لم يطرأ عليها سوى 400 سنة وما إلى ذلك نجد فيها تغيرات عديدة جدا. قد لا نستطيع أن نفهم ما قد كان الأدب الإنجليزي قبل 400 سنة، ولكن الأدب العربي هو كما هو، ليس فيه أي تغير ولن يطرأ عليه أي تغير حتى يوم القيامة إن شاء الله. ये चंद बातें मैंने आपसे जुड़ी की है, बस मकसद यही था कि कुछ बातें आप सुने, अरबी सुनने के हम लोग भी आदि हों और उससे जो भी इस्तेफादा हो सके। बहरहाल मेरा जो टॉपिक है जो मैं आपसे की वजह से आपके सामने यहाँ बैठी हूँ, ये है कि जो प्रॉस्पेक्ट्स है अरबिक लैंग्वेज का इन इंडिया आपको, और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खास तौर से अगर देखा जाए कि इस सब्जेक्ट को पढ़कर, इस लैंग्वेज को पढ़कर हम क्या सीखते हैं, इससे क्या हासिल किया जा सकता है। सिर्फ ये नहीं है कि अगर ये इंसान सोचे कि नहीं ये हमारे लिए कहीं ना कहीं जो है फाइनेंशियली इसका रिटर्न हमको मिल जाए, ये एक अलग बात हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ अब आप अरबिक लिटरेचर जब आप पढ़ें, आप इवन आज का जो उनकी जो कंडीशन है, जो स्टेटस है, उससे भी बहुत सी चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो चैलेंजेस हैं इस लैंग्वेज के सामने, बिलखुसूस वो चैलेंजेस जो उन्हीं के खित्ते से हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे अरबिक लैंग्वेज के खिलाफ आप देखे होंगे तकरीबन ये 90s से ये चल रहा है कि कहीं ना कहीं लोग कोलोकियल लैंग्वेज को प्रेफरेंस देते हैं, कोलोकियल लैंग्वेजेस में अरबिक की क्लासेस की जाती है। यानी एक तरह से ये कहा जाने की कोशिश की जाती है ये लैंग्वेज जो है जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, नए नए इस्तिलाहात, नई नई चेंजेस जो आ रहे हैं, उसके हिसाब से ये जो लैंग्वेज है ना उसको अकोमोडेट नहीं कर पा रही है। इस वजह से हम कहीं ना कहीं जो है कोलोकियल लैंग्वेजेस को शामिल कर लें। अब तो नए चैलेंजेस जो आ रहे हैं वो व्हाट्सएप लैंग्वेज की आ गई है। अब हम तो उर्दू में इस्तेमाल करते ही हैं, इस तरह से हम नए नए एब्रिविएशन इस्तेमाल की। यही हाल अरबिक का भी है, अगर आप उसको कहीं देखते होंगे यही हाल अरबिक के साथ भी आ गया। इस तरह के एब्रिविएशन आ रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड अरबिक की जो साख है वो नहीं होती है। और यही मकसद लोगों पर, ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो ये लैंग्वेज फेस कर रही है। बहरहाल इसके बावजूद अगर देखा जाए लोग अरबी जुबान को सीखने के लिए आमादा हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं हिंदुस्तान के पस मंज़र की बात करूँ, जब मैं अरबी पढ़ना शुरू किया, मदारिस का तो अपना रोल है, वो आपके सामने है, कितना फ़आल होते हैं मदारिस। अरबी उनका भी एक मकसद है अरबी सीखने सिखाने का, ज़ुबान सीखने सिखाने का, कि हम कहीं ना कहीं रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग हो सकें। लेकिन हम लोग जब यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, कॉलेजेस में आते हैं, या अब अलग अलग इंस्टीट्यूशन खुल रहे हैं
अरबिक स्पीकिंग कोर्स वगैरह कराने की, तो उसके मकसद कुछ डिफरेंट होते हैं। ये होता है कि कहीं ना कहीं तो हमको अरबों से जो हमारे ताल्लुकात हैं वो किस तरह से मजबूत हो सके, उनसे जो ट्रेड के रिलेशन है उसको कैसे मजबूत किया जा सकता है। और अगर इंसान अपना खुद कोई बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहा है और उस इलाके के लोगों से वो जैसे कि हिंदुस्तान के ताल्लुक से आता है, बहुत पहले जब हिंदुस्तान की डिस्कवरी होती है उस वक्त भी अगर आप देखेंगे अरबों के जो ताल्लुकात थे कहीं ना कहीं जो है तवाबिल की बात सबसे पहले आती है, मसाले वगैरह की बातें आती, तलवार की बातें आती, यानी ये रिलेशन बहुत गहरा था। तो रिलेशन आज भी है, तो उनके यहाँ से जो भी चीज़ें आ सकती हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह जो हमारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे भेजे जा सकते हैं, अगर आपके पास जुबान है तो आप कहीं ना कहीं उसमें ज़्यादा कार्य होंगे, आपके लिए वो ज़्यादा मुफीद होगा और आपके लिए कारगर होगा। मैं चंद मिसालें आपके सामने पेश करूँगा जब जॉब अपॉर्चुनिटी की बात आती है। जैसे मैं अपनी मिसाल पेश करता हूँ, मैं जब गया एक मरतबा सऊदी अरेबिया किसी कॉन्फ्रेंस में, तो एक छोटी सी मीटिंग हम लोग जैसे मदारिस के जो प्रोडक्ट होते हैं, खास मदरसे से अगर आपका ताल्लुक है तो वहाँ के जो भी लोग मौजूद होते हैं तो सोचते हैं कि एक छोटा सा गेट टुगेदर करा दिया जाए, उसमें जो है कुछ बातें की जा सके। तो हमारे ताल्लुक से भी ऐसा कुछ रहा। वहाँ पे एक शख्स मुझसे मिला, वो भी स्टूडेंट था उसी यूनिवर्सिटी उसी मदरसे का। उसने बताया कि हमने MBA किया हुआ था और जिस तरह से नॉर्मली लोग MBA करते हैं, और उसके बाद जब उसकी कंपनी जो है वो अपना रीजनल डायरेक्टर की तलाश में थी, नई ऑफिस वो मिडिल ईस्ट में अपना इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, तो जो डायरेक्टर थे उन्होंने सभी लोगों की CV को पढ़ना शुरू किया और उसमें अरबिक जब देखा तो उनको बुलाया और पूछा कि भाई आपने तो अरबिक है, आप अरबिक जानते हैं? तो उन्होंने बताया मदरसा बैकग्राउंड के तो अरबिक तो शुद्ध बुद्ध है ही, और कुछ जामिया मिलिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन करने की वजह से जदीद अरबी उससे भी वाकफी है। तो हल्का फुल्का टेस्ट लेने के बाद वहाँ का रीजनल डायरेक्टर उनको बना दिया गया। अब जो उसके कलीग थे हिंदुस्तान में वो सब उसके अंदर में काम कर रहे हैं। तो ये देखिए कितना प्लस पॉइंट होता है अगर आपके पास लैंग्वेज है। तो ये लैंग्वेज अगर आप खास तौर से अरबिक लैंग्वेज प्रॉमिसिंग लैंग्वेज है ना, क्योंकि ये लैंग्वेज आप जैसे जानते हैं कि जिंदा जुबान है, इससे खत्म होना नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी हमेशा। हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमेशा की ज़रूरत है। हिंदुस्तान जैसी मुल्क में भी अरबी का अगर देखिए बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो आपको हिंदुस्तान की सभी रीजनल लैंग्वेजेज में मिल जाएंगे, जो कि ओरिजिन अरबिक है उसकी। उर्दू में तो रोज़मर्रा के मुस्तमिल अल्फाज जो खासतौर से अभी ये बात भी हो रही है उसमें बहुत से अरबी के अल्फाज आएंगे और उससे भी वाक़िफ़ हिंदी में भी है, इंग्लिश में तो बेतहाशा है। एक दो मिसाल आपको दे दूँ, जैसे वाटर है, अगर आप थोड़ा सा उस पर गौर करें तो आपको लगेगा ये मतलब इसे करने के लिए ड्राइव जस्ट है, देख लीजिए जस्ट अरबिक और जस्ट मिलाइए, टॉल तवील मतलब बहुत से ऐसे अल्फाज हैं पर अगर इंसान गौर करे तो कहीं ना कहीं अंदाजा होता है, क्योंकि हमारा तो एक मानना भी है कि ये तो दुनिया के कायम होने से पहले ये ज़ुबान कायम थी, आदम अलैहिस्सलाम अरबी, तो बहरहाल ये तो हमारा एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन अगर ये सच्चाई पर मबनी है और हमारा एतक़ाद है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम रिसर्च करेंगे तो बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी। लिंग्विस्टिक्स का एक ये फील्ड है, लेकिन उसमें भी अगर आप चाहें तो बहुत सी चीज़ें नई आप दे सकते हैं जो आज का जो रिसर्च बेस्ड जनरेशन है उस जनरेशन के लिए कुछ नई चीज़ें अगर आ सकती हैं तो हम जैसे लोग अगर लैंग्वेज पर मेहनत करते हैं, मखतूतात का इस्तेमाल करते हैं। अभी जैसे किसी ने हमको बताया था, उसका मेरा बहुत उस पर रिसर्च नहीं है, कि कोई मखतूता था उसमें मास्क का जिक्र था। तो मास्क के हवाले से ये था कि जब लोग हज करने जाते थे उस ज़माने में तो उनको किनारे यानी जिस एरिया से लोग आए उन सब एरिया के लोगों को थोड़ा सेपरेट कर दिया जाता था और कहीं ना कहीं एक मासिक इस्तेमाल करते थे जिसे हम आज मास्क कहते हैं। शायद वही मासिक रहा हो या मास्क डिफरेंट रहा हो, जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिसर्च की बातें हैं जिस पे अगर हम लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो कुछ नई चीज़ें सामने आ सकती हैं। बहरहाल अगर आप मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी अरबी का है, साथ में आपके पास कोई लैंग्वेज है मीडियम के तौर पर इंग्लिश हो और थर्ड हो जाए तो समझ लीजिए फिर आप सुपर हो गए, यानी फिर आप बैठे नहीं रहेंगे घर पर, और घर पर भी बैठेंगे तो ऑनलाइन जुड़े रहेंगे, यानी इतना रिलेवेंस है इसका अरबी जुबान का। ट्रांसलेशन की फील्ड कितनी आपको पता ही है, कितनी प्रॉमिसिंग फील्ड है और रिजल्ट ओरिएंटेड है कि कहीं ना कहीं आपको फ़ौरन जो है उसका बेहतरीन रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। हालांकि अब तो नई नई चीज़ें आ गई हैं जो
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह जो है, लेकिन इसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद भी कुछ ज़रूरतें जो महसूस की जाएंगी वो कोई ना कोई एक्सपर्ट ही उसको पूरा करेगा। तो हम एक्सपर्ट अगर बन जाएंगे लैंग्वेज के तो हमारी ज़रूरत आज भी होगी। काम क्या होता है, जैसे अभी एक बुक मेरे पास आई है ट्रांसलेशन के लिए अरबिक में, तो मुझे ऐसा लगता है अगर इंग्लिश इंटू अरबिक कोई चीज़ हमारे पास आती है तो अरब भी इसको कर सकते हैं। मगर अब वही मसला होता है कि मैन पावर का, वहाँ पे अगर जाएगी तो रेट बहुत कम मुतालबा किया जाएगा, और यहाँ आ जाएगी हम कम रेट पे ज़रूर करेंगे लेकिन हमारे लिए वो रेट मुनासिब होगा। तो ये भी एक फील्ड है जिसमें इंसान बेहतर से बेहतर कर सकता है। और हमने तो आज ये देखा मेडिकल टूरिज्म के आने के बाद कि ग्रेजुएशन करके यानी सिर्फ हल्की फुल्की अरबिक भी इंसान सीख कर जो है बेहतरीन उसको मौके मुयसर हो जा रहे हैं, और वो मेडिकल टूरिज्म को अपना जो है एक फील्ड बना सकता है, उसमें भी अच्छा काम कर सकता है। लेकिन उससे आगे अगर इंसान निकल रहा है तो आप एम्बेसीज में देख लीजिए, मिडिल ईस्ट का जो आज सूरत हाल है, चाहे वो सीरिया के हालात, चाहे फ़लस्तीन के हालात, ये ऐसे हैं कि यूनाइटेड नेशन भी अपना विद्यमान इस्टेब्लिश करता है, उसको भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो दोनों लैंग्वेज पे महारत हासिल हो, उनको इंग्लिश के साथ साथ अरबिक भी हो, ताकि वहाँ की बातें उनको समझ में आ सके, और जो भी उनके मिशन की अपनी जो पॉलिसीज होती हैं उन पॉलिसीज़ के साथ वो काम कर सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छे मौके हमें मिल सकते हैं। एम्बेसीज में आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं। कोई ऐसी एम्बेसी नहीं है अरब कंट्रीज़ की जिसमें आपको ट्रांसलेटर, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, इकोनॉमिक एडवाइज़र, या आजकल कल्चरल अटैचीज खुल रहे हैं उसमें फिर वीज़ा सेक्शन वगैरह। उसके अलावा आप चले जाइए अरब कंट्रीज़ में देख लीजिए, क्लर्कियल पोस्ट पे तो पूछना ही नहीं है, बेइंतहा मौके हैं। क्लर्कियल का मतलब ये कि छोटी छोटी जो चीज़ें, आजकल ऑफिसर्स का एक नया सिस्टम आ गया है कि जिसको कहते हैं सर्विस प्रोवाइड करने का, हर चीज़ में सर्विस प्रोवाइड करने के ऑफिसर्स हैं, उसको भी आप इस्टेब्लिश अगर करना चाहें तो उसमें भी आप बहुत से सर्विसेज आप दे सकते हैं। हिंदुस्तान में रहकर ऑनलाइन आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वही है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा, प्लस आपके पास लैंग्वेज होनी चाहिए। हाँ, एक बात मैंने आपको शुरू में कही थी, वो अरबी में जो मैं शुरू में कहा था कि जो कोलोकियल लैंग्वेज है, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं बहुत जोर नहीं दूंगा कि आप उसको इस नौयत से सीखिए कि आप उसे अपने रोज़मर्रा में उसको इस्तेमाल कीजिए, लेकिन वाकफियत ज़रूरी है। वाकफियत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे अरब का, या अरब से जब आप मुखातब होंगे, मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ, हमने देखा कि जो बहुत अच्छी स्टैंडर्ड अरबिक में गुफ्तगू करते हैं तो अरब भी उनसे बात करने में घबराते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कोई दीनी प्रोग्राम शुरू हो गया, हाँ, या तो टीवी ऑन हो गया, अब क्योंकि उनकी भी अब आदत नहीं रही। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हम स्टैंडर्ड अरबी छोड़ दें। स्टैंडर्ड अरबी को तो हमें कहीं ना कहीं सीख कर उसमें आगे जाना ही है कि कोई लिटरेरी लैंग्वेज है, लेकिन उससे वाकिफ होना भी ज़रूरी है। किस तरह के चेंजेस होते हैं स्पोकन में, उससे भी हमें वाकिफ होना, चाहे वो सऊदी की हो चाहे गल्फ की हो, बहुत ही हल्की चेंजेस, यानी आप ये कह सकते हैं डायलेक्ट में चेंजेस होते हैं, उससे आप कब वाकिफ हो सकते हैं, जब आप बराह रास्त उनको सुनेंगे। सुनने की मीडियम आपके पास मौजूद है, सभी के हाथ में मौजूद है। ये अलग बात है हम टाइम इसमें नहीं देते हैं। अगर हम उसको टाइम दें, मेरे हिसाब से अगर हाफ एन आवर हम निकालें अपने 24 घंटे में डेली का कि हमें अरबिक सीखना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 साल में ही रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सुनना सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। उसके बाद जब आप इस मरहले से आगे बढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जो है, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो बातें आप सुनते हैं डेली, उसे आप कलम बंद करना शुरू कर दीजिए। उसी जुबान अरबिक में आप कलम बंद करना शुरू कर दीजिए। तो क्योंकि देखिए बहुत सी चीज़ होती है, इंसान जब पढ़ता है तो बगैर सोचे बहुत कुछ पढ़ जाता है। ये मैं तो खुद महसूस करता हूँ, कभी कभार ऐसा होता है कई पेजेस पढ़ लिए, क्या पढ़े याद नहीं, मगर अगर एक पेज भी आप लिख रहे हैं बगैर सोचे आप लिख नहीं सकते। तो इसकी भी आदत अगर हम डालना शुरू कर दें कि कुछ ना कुछ 2-4 ही लाइन रोज़ अरबिक में लिखेंगे, तो सिला की जो गलतियाँ उससे होती हैं, या अल्फाज का इंतखाब जो होता है कि कौन सा लफ्ज़ यहाँ मुनासिब होगा इस जुमले के लिए, या कौन से फ्रेजेस हम चूज़ कर लें, ये बहुत आसानी के साथ हो जाता है। लेकिन बस वही है कि उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। तकरार जो अल्मुल जो एक अरबी का एक मतलब है, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कहीं ना कहीं जो है प्रैक्टिस करें। पर हम बात कर रहे थे सिर्फ वही अपॉर्चुनिटीज़ की,
अपॉर्चुनिटीज़ तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है। इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान के दिमाग को कहा गया अकल इलेक्ट्रॉनी, ये ऐसा दिमाग है हिंदुस्तान का जो कि पूरी दुनिया को चला सकता है। तो इस जहन को हम अगर सही रुख दे दें, बस अरबी ज़ुबान में अगर हम उस चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू कर लें, तो मुझे लगता है कि हम अरबों के लिए भी मुफीद साबित हो जाएंगे। और उन कंपनीज की आजकल चाइना की जो कंपनीज वहाँ पे कदम जमा रही हैं, उनको भी ऐसे लोगों की ज़रूरत है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप मान लीजिए हल्की फुल्की चाइनीज़ भी सीख सकते हैं उसके साथ, तो आप बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर जाएंगे। फ्रेंच सीख लें आप उसके साथ, अरबिक इंग्लिश के साथ साथ आप तीसरी ज़ुबान, अब क्योंकि थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया है तो तीसरी ज़ुबान की भी ज़रूरत है। तो तीसरी ज़ुबान में बस छुट अगर आ जाए वो काफ़ी हो जाती है कि आपके लिए एक बेहतरीन जो है मौका आपको मिल जाए कंपनियों का। अगर आप ऑनलाइन उसको चेक करते रहते हैं, अगर ऑनलाइन आप देखते रहते हैं जो वैकेंसी अरब में आती हैं, तो आपको इस तरह की वैकेंसी बहुत दिखाई देंगी जिसमें 3 लैंग्वेज के एक्सपर्ट को मानता है। हालांकि ऐसा नहीं है तीनों लैंग्वेज में फुल्ली साउंड हो, कम से कम अरबिक में तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो जो इंटरव्यू लेगा वो आपको अरबी है। अगर आप अरबिक में साउंड नहीं होंगे तो पहले ही रिजेक्ट हो जाएंगे, पहले ही मरहले में, दूसरा तीसरा मरहला आएगा ही नहीं। और अगर उसमें साउंड हो जाएंगे, बाकी मरहले में थोड़ा सा कमज़ोर भी होंगे, तो भी जो है आप सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो इसकी तरफ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह इंसान करे साथ हैं, जैसे छोटे छोटे जो कोर्सेज आ रहे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज आ रहे हैं, अदर जो भी टेक्नोलॉजीज़ के हैं, कहीं ना कहीं इंसान अगर उसको भी कर लेगा साथ में, MBA हो चाहे MCA हो या जो भी नए टेक्निकल कोर्सेज हैं, नए प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उनको अगर कर लेगा और उसके साथ ये ज़ुबान है, तो उसको तरक्की करने के मौके बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तो अगर ऑफिस में भी आप जाना चाहेंगे तो भी आप बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। जैसे आजकल डिग्रियों की भी बहुत डिमांड है। मान लीजिए अगर आपने इकोनॉमी से आपने अगर डिग्री हासिल की और साथ में आपके पास अरबिक है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप सबसे मुनासिब और मौजूद पर्सनैलिटी होंगे कि आपका सिलेक्शन होगा इन एरियाज में जो भी गल्फ से रिलेटेड अफेयर्स होंगे। अगर हिंदुस्तान में मिनिस्ट्रीज में अगर आप देख लीजिए, मिनिस्ट्रीज में भी जॉब्स हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री की भी जॉब है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जॉब है। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ट्रांसलेशन की जॉब नहीं, एनालिसिस की वो जॉब है, एनालिस्ट की ज़रूरत उनको पड़ती है, उसमें भी आपके पास है। फिर आप आ जाइए इधर इंटेलिजेंस में भी अच्छी खासी जॉब है। उसके अलावा एक तहजीब से वाकिफ़ होने के लिए, एक कल्चर से वाकिफ़ होने के लिए और उस कल्चर में जो खूबियाँ हैं वो दूसरों को उससे मुतारफ़ कराने के लिए भी ये ज़रूरी है कि हम उस लैंग्वेज को सीख लें, उस ज़ुबान को सीख लें जो ज़ुबान अल्लाह ताला की कुरान को समझ लें। उस ज़ुबान को अगर हम सीख लेंगे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो उसमें, जिसको कुरान को तो आप जानते हैं मंगोल उलूम कहा जाता है, तो मंगोल उलूम का मतलब ही यही होता है कि इल्म का सरमाया उसमें पोशीदा है, हम उस तक पहुँचेंगे कैसे। दूसरे लोग तो उसी को पढ़ रहे हैं, उसी को रिसर्च कर रहे हैं, फिर नई नई चीज़ें लेकर मार्केट में आते हैं, हम उसको तर्क कर दिए हैं। शायद उसकी वजह से भी बहुत सी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ रहा है। हम हर फील्ड में कहीं ना कहीं जो है जो जिस मकाम पे हमें होना चाहिए। अब एक सोचने वाली बात ये है कि जो दिन हमें कुरान की पहली जो आयत नाज़िल होती है इक़रा, हालांकि उस दौर में अगर आप देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने आप में उनका अखलाक तो बहुत ही बुलंद था उस वक्त भी, यानी नबूवत मिलने से पहले कौन सी ऐसी कमी थी आप में? कोई कमी नहीं। आपको सादिक़ अल अमीन कहा गया, आपके अखलाक का कुरैश तो बेशक के बाद भी उसके कायल से पहले तो कुछ नहीं, बड़े से बड़े झगड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ख़त्म हो जाया करते। तो आखिर ऐसा क्या है कि इक़रा कहकर पहली आयत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करती है, उससे मुराद मेरी समझ से सिर्फ आप ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब उससे मुखातब है कि इक़रा आखिर ऐसा क्या है, कि पढ़ने का मतलब क्या है, कौन सी तालीम हासिल करना है। सारी मुझे लगता है कि हर वो इल्म जो इंसान को अल्लाह की मार्फत तक लेके जाए, और इसीलिए शायद कुरान में आया कि इन्नमा यख्शुल्लाह मिन इबादिल उलमा, कि आलिम ही अल्लाह ताला से सच्चा खौफ या डर या जो खशिया है उसी के अंदर पैदा हो सकता है, दूसरे के अंदर नहीं पैदा हो सकता। तो मुझे ऐसा लगता है तो इल्म हासिल करना इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है।
अरबिक ही वो ज़ुबान है जो कुरान की ज़ुबान है। अब अगर हम वो कुरान को समझना चाहते हैं तो हमें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फाइनेंशियली भी अगर हम देखते हैं तो ये लैंग्वेज हमें रिटर्न भी होप दे रही है, क्योंकि ये लैंग्वेज खत्म नहीं होगी। एक चीज़ हमने पढ़ा था, अब कहाँ तक ये सच है, कि कहा जा रहा है कि जो भी न्यूक्लियर जो फार्मूले वगैरह हैं रशिया में, उसे अरबिक में लिख कर लोग रख रहे हैं ताकि आने वाली नस्ल उससे मुस्तफीद हो, क्योंकि उनको ये पता है, रिसर्च बेस्ड है लैंग्वेज का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, कि ये लैंग्वेज 1400 साल या 1450 साल तक उसी तरह से उसमें ज़रा बराबर कोई तब्दीली नहीं आई, तो ये कम से कम 1450 साल तक भी इसी तरह होगी। तो बाकी लैंग्वेजेस में तो चेंजेस आते चले जा रहे हैं। आज जो नस्ल मौजूद है 100 साल बाद हो सकता है वो ज़ुबान उसको ना आए जिस ज़ुबान में ये अपना लिखे। इसीलिए कहा जाता है कि इस तरह से, अब ये सच्चाई है कि नहीं है, ये एक पेपर की कटिंग की बात है। अब पेपर में भी आप तो जानते हैं कि सब कुछ सच नहीं होता है, लेकिन वही है कि हम तो एतबार भी उसी पे करेंगे। और हमें ऐसा लगता है कि ये है जिंदा ज़ुबान, तो ऐसा ज़रूर वो लोग सोचते होंगे जो इस ज़ुबान पर रिसर्च किए हैं और रिसर्च करके इस नतीजे पे पहुँचे होंगे। तो हमारा भी यही काम है कि वो जो चैलेंजेस इस ज़ुबान के इर्द गिर्द हैं, ख़ासतौर से हिंदुस्तान में, हमें ये करना चाहिए कि मदारिस में भी कहीं ना कहीं जो है अब स्पोकन का एक पीरियड होना चाहिए जिसमें इंसान इसको मशक करे, बातचीत करने की कोशिश करे। अब आप लोग यूनिवर्सिटीज़ में हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ में तो बतलाने की ज़रूरत नहीं होती है, इंसान तो खुद ही उस लेवल का होता है, उसको समझ होती है कि कौन सा तरीका कार इख्तियार करे, कौन सा लाहे अमल इख्तियार करे, जिससे वो ज़ुबान पर पूरी तरह से उसको दस्तक हासिल हो सके। तो ये सब चीज़ें अगर हम आप करेंगे तो मुझे लगता है कि यकीनन हमें कामयाबी मिलेगी, और ज़ुबान को दिन ब दिन जो है वो आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगी, अगर आप पूरी तरह से उससे वाकिफ़ हो जाएंगे और उसमें जो कुछ भी चेंजेस, यानी जो कुछ भी आप ऑनलाइन का जो भी नया इंटरनेट वगैरह का ज़माना है, नई नई चेंजेस जो आ रहे हैं, नए नए स्टाइल जो आ रहे हैं, उन सब चीज़ों से अगर हम वाकिफ़ होंगे तो बहुत आसानी से इन तमाम चीज़ों को हम फतह कर लेंगे और कामयाब हो जाएंगे। बस यही बातें थी जो मैं आपसे करना चाह रहा था। आई होप कि कुछ चीज़ें आपको पसंद आई हों, और कुछ बातें अगर आपको लगा कि सही है उस पर आप अमल करें, और मेरे लिए बस दुआ कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप डॉक्टर संजीव साहब का, प्रोफेसर शहर साहब का, सभी हजरात का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका फराहम किया कि मैं आपसे चंद मिनट शुरू कर सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे अरबी में कहावत है, साहिबुल बैत बेमाद राफ़ी। चूँकि हमारे महमूद साहब की पैदाइश मक्के में हुई है, वहीं तालीम तरबियत हुई है, तो वो बहुत कुछ जानते हैं जो हम लोग नहीं जानते। और ज़बान की अहमियत, सही बात यह है कि उसी जगह पे जाके आ सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं जहाँ पे वो बोली जाती है। जैसे इस वक्त मिस्र में बहुत अरबी डिपार्टमेंट, उर्दू डिपार्टमेंट कायम है। मिस्र यूनिवर्सिटी में बाकायदा उर्दू का डिपार्टमेंट कायम है, लेकिन वो उतनी अच्छी उर्दू नहीं बोल पाते हैं जितनी हम बोलते हैं, क्योंकि सेकेंड लैंग्वेज हर हाल में सेकेंडरी होती है, सिवाय इसके कि आपने वहाँ काफ़ी वक्त गुजारा हो। तो जितने शोबे हैं इस वक्त हिंदुस्तान में, उसमें इस हवाले से हमारे महमूद साहब और अलीगढ़ में एक साहिबा है प्रोफेसर तस्नीम कुरैशी, ये दोनों हजरात वहीं के बॉर्न हैं, वहीं के ब्रॉड हैं, वहीं उन्होंने तालीम तरबियत हासिल की। ये उनको शुक्र, तो हम तो रश करते हैं और ये शुक्र करते होंगे इंशाअल्लाह। अब कोई भी चीज़ बगैर सवाल जवाब के अधूरी रहती है, तो मैं आप तमाम लोगों से चाहूँगा कि आप लोग इसमें अपने अपने दिल में जो भी सवाल आ रहे हों उसको आप पूछ सकते हैं। ये माइक है, आप लोग पूछिए, उसके बाद इंशाल्लाह इनका जवाब सुनाई देगा। हाँ, अगर आप ही है तो ठीक है, नहीं कोई अगर किसी का। हाँ, सर, आपने बात की कि डेली हाफ एन आवर प्रैक्टिस हमें करनी है जिस तरह से। सो फॉर एग्जांपल मेरी इंग्लिश अच्छी है, उर्दू मुझे समझती है, लेकिन मैं प्योर उर्दू नहीं बोल सकती, ठीक है। तो अब प्रैक्टिस का कुछ आपके पास टिप्स हैं या कुछ ऐसा फिक्स्ड कोई रिसोर्सेज है जिसको हमें रेफर करना है? जैसे आपने बोला कि सुनना है हाफ एन आवर, ठीक है, तो सुनते वक्त ऐसा होता है कि काफ़ी कुछ शायद नहीं समझ आएगा, कुछ वर्ड्स आएंगे, तो इसको इम्प्रूव कैसे हो, लाइक समझ में कैसे आए?
अच्छा सवाल है। और मुझे लगता है कि इस टिप से आप सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगी क्योंकि आपको इंग्लिश आती है। हमारे उस्ताद मौलाना जामिला फारूकी साहब यूनिवर्सिटी में थे, वो अपने उस्ताद की बात कोट किया करते थे कि प्रोफेसर रफ़ीक साहब हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे, उनकी एक ही बात कोट किया करते थे। वो कहते थे कि हत्ता यंतल लिसानी और यंतल कलामी, पढ़ो यहाँ तक कि आपकी ज़ुबान चल पड़े, आपका कलम चले, रवां हो जाए। तो देखिए पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। अब कुछ शुद्ध तो आपकी अरबी की होगी, तो आप पहला काम ये कीजिए, आप पढ़िए, ठीक है। बहुत सी चीज़ें ठीक है नहीं समझ में आएंगी, लेकिन पढ़ने की आदत आपको हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको कही थी कि सुनने की, अब बहुत आसान तरीका हो गया। आपके पास कोई न्यूज़ आप इंग्लिश में लीजिए, BBC इंग्लिश मान लीजिए, कोई न्यूज़ आजकल फ़लस्तीन इशू है, बर्निंग इशू है, उसको आप इंग्लिश में सुनिए। अब सेम न्यूज़ आप अरबिक में सुनिए, सेम न्यूज़, अब BBC अरबिक में आप चले जाइएगा, सेम न्यूज़ जो होगी आप उसे अरबिक में सुनिए। बहुत से टर्म जो होंगे वो इस्तेमाल हुए हैं भाई फ़लस्तीन इशू पे, क़ज़ियतुल फ़लस्तीन सबसे पहले, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क़ज़ियत इशू पे इस्तेमाल। इसी तरह से अगर आप सुनना शुरू करेंगे बोथ लैंग्वेज, वही न्यूज़ इंग्लिश में, वही न्यूज़ अरबिक में, तो बहुत जल्दी से आप उसको, मुझे लगता है अगर आप इसको करेंगे तो इंशाल्लाह आप 1 साल में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। सर एक सवाल मेरा है, जैसे अभी आपने कहा अरबिक न्यूज़ वगैरह की, क्या प्रॉपर ऐसा कोई चैनल है मतलब न्यूज़ के अलावा भी अलग टेक्निकल चीज़ों में जो इंग्लिश में भी हो और अरबिक में भी हो, मतलब वीडियोज़ की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि तहरीरी किताबें तो इस तरह जी किताबें भी तो बहुत हैं। यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाएँ ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई भी एक मैटर हो, कोई भी आप टेक्निकल चीज़ हो, आप इंग्लिश में उसको देखिए, वही चीज़ आप अरबी में सर्च कीजिए। यूट्यूब में इस तरह की चीज़ें होती हैं। किसी ने किसी चीज़ पे लेक्चर दिया हो, ठीक है, तो अरबिक में भी मिल जाएंगे आपको, इंग्लिश में भी मिल जाएंगे। टर्म तो तकरीबन वही रहेंगे, उसी चीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसी चीज़ को अरबिक में क्या कहते हैं। कुछ चीज़ें फिर आप सुनते सुनते आसानी से, कुछ ख़ास चैनल तो मेरे ध्यान में तो नहीं है, लेकिन यूट्यूब चैनल में बहुत अच्छा खासा कुछ मटेरियल मौजूद है, उसको आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह। बाकी न्यूज़ वाला जो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं और उसी के ट्रांसलेशन जनरली कोर्सेज में शामिल होता है, तो वो एक स्टेप होता है कि इंसान सबसे पहले न्यूज़ के ज़रिए से मुफ़्रदात और अल्फाज वोकैबुलरी अपनी बढ़ा सकें। वही चीज़ बिल्कुल सेम चीज़ आपको मिल जाएगी। अब वही है कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं रहता, लेकिन बस वही न्यूज़, वही बातें आप अरबिक में होंगी, वही बातें इंग्लिश में होंगी। सर ये हमारे हिंदुस्तान में बहुत से मदारिस हैं और अच्छा खासा अरबिक माहिरीन भी एक हिसाब से हमारे शहर से होते हैं और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरान भी हैं, लेकिन वहाँ के जो अरबी जहाँ होते हैं अरब कंट्रीज के, हमारे यहाँ में उसके ऊपर थोड़ा सा फ़र्क महसूस होता है। मतलब आप किस पॉइंट से बात कर रहे हैं? लोकल वाली बात कर रहा हूँ है, वही तहरीर या तकल्लुम है, जो उसलूब उनका रहता है बोलने का या लिखने का, वजह से उसकी कमी महसूस होती है। तो उसके लिए मतलब असल में आपको बताऊं, मेरा जो अपना अंदाज़ा, आप तारीख की भी मैं आपको बताता हूँ। तारीख का मामला ये होता है कि हमारे यहाँ बहुत ही ग्रामर पर ध्यान दिया जाता है, यानी हम पहला स्टेप जो है लैंग्वेज सीखने का हमारे यहाँ वो ग्रामर बेस्ड है, उनके यहाँ नहीं स्पोकन बेस्ड है। यानी जिस तरह हम उर्दू सीखते हैं, ग्रामर उर्दू की नहीं आती लेकिन तब भी हम बातचीत कर सकते हैं उर्दू, वही हाल उनके यहाँ अरबी का होता है। उनके यहाँ बेस क्या होता है, सुनने का, सुनकर ग्रोथ करके फिर वो अरबी का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए उनकी तहरीर और हमारी तहरीर में कहीं ना कहीं फ़र्क होता है। हम कोशिश ये करते हैं कि मुब्तदा आ गया है तो अब सेंटेंस को मिलाना, चाहे 2 लाइन बाद खबर आ जाए। अब उनके ऐसा नहीं रहता है, स्पोकन में क्या रहता है ना, फ़ौरन चीज़ें आती हैं, तो फेल आएगा फ़ौरन फाइल आ जाए, फ़ौरन मुब्तदा तो फ़ौरन खबर आ जाए। तो सुनने का जो एक तर्ज है और लिखने का एक तर्ज है। हम क्या है, जब लिखते हैं तो सोचते हैं, सोचने के तर्ज में थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि इसी वजह से अरबों की जब आप तहरीर पढ़ते हैं तो आपको लगता है बहुत आसान है, और अपनी जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अगर बहुत ध्यान न दिया जाए तो भूल जाएंगे कि मुब्तदा क्या था, काफ़ी लंबी है ना, काफ़ी लंबे जुमले होते हैं। अब बाकी स्पोकन का मामला जो है कि वजह ये है कि हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप रहा। एक दौर था जो कम्युनिकेशन गैप था, अब तो ऐसा नहीं है। अब तो माशाल्लाह जो नई जनरेशन आ रही है वो अरबों की बिल्कुल
एग्जैक्ट उस अरबी से वाकिफ होती है, क्योंकि वो रेगुलर सुनते हैं और अब तो लोग टच में भी रहते हैं। तो नए नए ऐसे ऐप्स आए, शायद उससे मैं भी वाकिफ ना हूँ, आप लोग ज़्यादा वाकिफ होंगे। तो ऐसे ऐसे ऐप्स आए कि डायरेक्ट लोग अरबों से दोस्ती भी कर लिए और अरबी में गुफ्तगू भी करते हैं। और मैंने देखा ये आपके जब दोहा में फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, हमारे कई बच्चे नॉन मुस्लिम जो सिर्फ इस दिलचस्पी से आए थे कि दोहा में वर्ल्ड कप हो रहा, बिल्कुल पूरी तरह से पूरी दुनिया में एक फुटबॉल का एक बोलबाला है ये, उसकी वजह से हम लोग भी सीखना चाहते हैं। अच्छे लग रहे हैं उसके बोल, जो भी उस दौर में वर्ल्ड कप के ज़माने में जो चीज़ें जो सॉन्ग में शुरू हो गई हों या जो डायलॉग्स में शुरू हो गए, खासतौर से जब सऊदी अर्जेंटीना को बीट किया, 2-4 रील बन गई उस पर, हाँ, उस तरह से चीज़ें लोगों के दिलों में बैठ गई। ये लैंग्वेज बहुत अच्छी है, सुनने में भी अच्छी लग रही है, तो क्यों ना सीखा है। तो यही है सब चीज़ें बाकी की तरह। माज़रत के साथ असल मसला जो हम हिंदुस्तानियों का है वो ये है कि हम सोचते उर्दू या अंग्रेज़ी में, जो भी सोचते और लिखते अरबी में हैं। तो जब तक एक ही ज़बान में आप नहीं सोचेंगे तब तक वो ज़बान अच्छी हो ही नहीं सकती। हम जुमले बनाते हैं पहले अपने जहन में कि ये अच्छा लग रहा है, उसके बाद उसमें काट छाँट करते हैं, तो उस काट छाँट में देर भी हो जाती है और कोई ना कोई चीज़ गलती हो जाती है। इंग्लिश वाले सर यहाँ तो माशाल्लाह इंग्लिश वालों को मुकाबला कर रहे हैं। वो इंग्लिश वो वही माहौल है ना, वो बचपन से पढ़ रहे हैं, उनको पूरा जैसे अभी यही है। हम अगर यहाँ पे अरबी ही जैसे मदरसे में अरबी क्यों आ रही है, क्योंकि हम अरबी में सुन रहे हैं। या उन यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे अरबी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अरबी में ही सब कुछ हो रहा है, तो वो वजह है। लेकिन बुनियादी चीज़ जो लिखने और बोलने में है वो यही है कि हम सोचते उर्दू में है, उसका फौरी तर्जुमा करते रहते हैं, तो थोड़ी बहुत गाड़ी बहुत दूर तक नहीं चलती है। अब महमूद साहब वगैरह चूँकि उनकी पैदाइश है तो इनकी गाड़ी चलती रहती है, रवानी से चलती रहती है, लेकिन हाँ, तो ये चीज़ें हैं। तो हम जिस ज़बान में भी लिखें उसी ज़बान में सोचने की भी कोशिश करें, तो इंशाल्लाह उसका फ़र्क पड़ेगा। सर एक सवाल ये है कि क्या हम कोई कलोकियल लैंग्वेज भी सीखें अदर देन स्टैंडर्ड अरबिक? अगर जैसे कतरी, यमनी, शुड बी लर्न दिस लैंग्वेज कलोकियल, उनका जो डायलेक्ट है, और क्या नहीं बस स्टैंडर्ड को ही मेंटेन करें, स्टैंडर्ड अरबिक? मुझे लगता है कि अगर स्टैंडर्ड पूरी तरह से आप सीख चुके हैं तो आप सीखने का नहीं मसला, सिर्फ ये है कि आप सुन लीजिए। कम से कम जो है ना सर, आप उसका जवाब तो दे सकते हैं ना, चीज़ें समझ में आए। जैसे मुझे अभी भी याद है, एक साहब ने हमको फ़ोन किया, वो एम्बेसी में जॉब करते थे, कि बॉस ने कॉल किया है और कहा अबीक। तो अब अबीक से तो यही ध्यान में आता है कि मेरे बाप से क्या मुराद है यहाँ पे। तो मैंने कहा उनसे कि पहले आप मिल के आइए, उसके बाद बात करते हैं। तो अपना घर मिल कर आए, तो उन्होंने फ़ोन किया कि भाई बाप के ताल्लुक से कोई बात ही नहीं थी। तो मैंने कहा दरअसल वो अबगीक था। अबगीक यानी मैं चाहता हूँ कि आप आएँ। अब वो अरब क्या जल्दी में बोलते बोलते अफगान महजूफ हो गया। तो कम से कम इन चीज़ों से हम वाकिफ़ हैं। बस ये है कि इसी वजह से सीखें। बस ये नहीं कि हम इस्तेमाल भी करना शुरू कर दें। इस्तेमाल तभी करें जब उनसे बातचीत करना हो, और खुद या दीगर अरबों से बात करें तो मुझे लगता है तरजीह हमें स्टैंडर्ड ही देनी चाहिए, ताकि अपनी कम से मर्जी ना खराब हो। सर ये सर ये मॉडर्न स्टैंडर्ड क्लासिकल अरबी तो जैसी है वो आपने सही कहा, मतलब मेरे ख्याल से दुनिया की सारी ज़बानें अगर ख़त्म हो जाए या तब्दील हो जाए, क्लासिकल अरबी फिर भी बाकी रहेगी थैंक्स टू कुरान एंड हदीस। वो एक तबका रहेगा जो हमेशा कुरान और हदीस के लिए क्लासिकल अरबी सीखता रहेगा। इन मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक में सर ये प जैसे अल्फाज नहीं है, प नहीं है, च नहीं है, ट नहीं है, तो क्यों नहीं ऐसा, मतलब मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक में क्यों नहीं अरबों ने ये सारे अल्फाज लेके आए? ये फारसी से बोरो हो सकते थे सारे अल्फाज। ये बहुत ही डायरेक्ट अगर अरबों से पूछा जाए मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर जवाब देंगे। मुझे जो अपना ऐसा लग रहा है कि वजह ये कि फारसी ने अरबी से लिया, दिगर ज़बानों ने अरबी से लिया, इनको कभी ज़रूरत नहीं महसूस हुई किसी से बारो करें। वजह ये है, सिर्फ देखिए अब कोलोकियल में बहुत सी चीज़ें बारो कर ली गई हैं। जैसे जब कहेंगे रुख सीधा जाओ, है ना, सीधा भी इस्तेमाल करने लगे। अब वो क्या, वो पिक्चर्स वगैरह इंडियन पिक्चर्स देखकर बहुत से अल्फाज सीख लिया, या हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी वहाँ जॉब के लिए गए, बहुत सी चीज़ें एक दूसरे से एक्सचेंज हो गई। लेकिन अरबों को अरबी
मुफरदात या वोकैबुलरीज इतनी है और इतने ड्राइव इसमें सब उनको ज़रूरत ही कभी महसूस नहीं हुई, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले कल में भी महसूस होगी, क्योंकि एक ही पता चला एक शेर के लिए 500 वर्ड हैं, तलवार के लिए नहीं जाने कितने वर्ड्स हैं। इतने वर्ड्स वही अगर वो महसूस रख ले तो काफ़ी होगी। मेरा अपना ख्याल है। बाकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट असल में जो रूट है वो अरबी के ही हैं, और ये पा टा चा ये इलाकाई ज़बानें हैं, उनको उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब वो भी इस्तेमाल करने लगे। वो गुजरात को गुजराती ही लिख रहे हैं, गैन से गुजरात नहीं लिख रहे हैं जी, तो वो लिख रहे हैं। लेकिन असल चीज़ जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो असल हैं तमाम ज़बानों ने, मतलब जो ये फारसी है, उर्दू है, रस्म ख़त जिनका है वो उन्होंने हमसे लिया है। यानी अरबी के 28 लफ्ज़ हैं, उर्दू में आके वो 56 हो गए, फारसी में 38 हो गए, तो हमें उसमें करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब इस्तेमाल शुरू हो गया है लिखने में भी और बोलने में। लेकिन मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक ने ग्रीक से बहुत सारे अल्फाजात लिए हैं। अल्फाज देखिए, ये ज़बानों का लेन देन ज़बानों का लेन देन हमेशा चलता रहता है। सिचुएशन है, बहुत सी चीज़ें हैं, कॉटन है, मतलब ये ज़बान जो है ना, तो ज़बान वही जिंदा रहती है जो लेन देन करती रहती है, बोरो करती है। जो ज़बान लेना देना बंद कर देती है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे हिब्रूई है वो ख़त्म ही है, क्योंकि एक मखसूस तबका है इसलिए जिंदा है। संस्कृत है, इसको पूरी गवर्नमेंट लॉबी लगी हुई है कि उसको हम जिंदा कर दें, लेकिन जिंदा नहीं कर पा रहे। वजह उसकी वही है, ज़बान का लेन देन हमेशा चलता रहता है। कुरान में अभी पूरी आफा अब्दुल रहीम जो बहुत मशहूर नाम नबी अब्दुल रहीम साहब, उन्होंने कुरान पे तहकीक की है, उसमें सैकड़ों अल्फाज हैं जो दूसरी ज़बानों से ही हैं, और वो आज के स्टैंडर्ड अरबी में माने जाते हैं। तो वो देन के ही नतीजे में है। अल्फ़ाबेट एक अलग चीज़ है और वर्ड से एक अलग चीज़ है, तो हमें दोनों में फ़र्क करना होगा। सर, हम अभी मुंबई में हैं जैसे है ना, तो पढ़ने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं, सुनने के लिए भी इंटरनेट मौजूद है, बोलने के लिए क्या करें, किससे बोलें? सबसे पहले मैंने गुफ्तगू की। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप तो खुद माशाल्लाह काफ़ी स्टूडेंट हैं आप लोग, अगर आपसी में आप लोग गुफ्तगू शुरू कर दें नहीं गलत सब बोलेंगे, आप गलत यहाँ बोलेंगे और जो सुनेंगे वो तो सही सुनेंगे, फिर रियलाइज करेंगे गलती कहाँ हुई। आज 20 जनवरी इसलिए लोग हैं। अच्छा, 20 जनवरी होगी उस दिन नहीं मिलेंगे। बस मैं यही कहूँगा कि आप कम से कम आप ऑन आवर फ्रेंड्स के लिए रख लीजिए, एक ग्रुप बनाइए जिसमें डायरेक्ट आप लोग एक दूसरे से गुफ्तगू कीजिए। चीज़ें तो मीडियम आपके पास अवेलेबल है, नहीं तो डायरेक्ट अरबों से दोस्ती कीजिए, अब तो वो भी बहुत आसान है। सीधे कोलोकियलियत पे आ जाते हैं, उस पे कोई बात नहीं, आप कोलोकियली सीखिए, ऐसा नहीं है कोलोकियल सब रिटर्न होगी वही स्टैंडर्ड अरबिक की तरह, कोई ऐसा लफ्ज़ कोलोकियल का नहीं है जिसका रूट वही ओरिजिनल अरबिक के स्टैंडर्ड अरबिक में है। सर, कुरान की लैंग्वेज को क्लासिकल अरबिक कहा जाता है और दूसरी जो ज़बान है उसको स्टैंडर्ड अरबिक। तो सर, क्योंकि कुरान तो फर्स्ट सोर्स है अरबिक लैंग्वेज का, तो उसको क्लासिकल से क्यों कैटेगराइज किया गया है? स्टैंडर्ड अरबिक भी वही, ऐसा नहीं कि वो अलग, मतलब मॉडर्न को स्टैंडर्ड अरबिक कहा जाता है ना नहीं, सर? ऐसा नहीं, मॉडर्न को स्टैंडर्ड अरबिक कहा जाता है। अरबिक तो सेम वही है, क्या कि नई चीज़ें जो आ गई हैं मार्केट में, उसके लिए जो अल्फाज हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लिटरेचर में बहुत सी चीज़ें नई नई आ गई हैं, ठीक है, जैसे बहुत सी चीज़ें जैसे नावल हो, ड्रामा हो, बहुत सी चीज़ें कहा जाता है कि हमने उनसे लिया, हालांकि उसके अगर आप देखेंगे इसके रूट तो आपको अरब में मिल जाएंगे, है कि नहीं, चाहे वो आपके बाजारों के हवाले से, कुरान में कहानियों के हवाले से, रियल स्टोरीज के हवाले से, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। क्लासिकल इसलिए कहा जाता है, बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो रेगिस्तान वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, या वहाँ पर जो इंसान की ज़रूरतें थी उसके लिए इस्तेमाल होते, अब वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं। अब मॉडर्न में नई नई चीज़ें आ गई, अभी फ्रिज भी आ गई, वॉशिंग मशीन आ गई। मैं अपने घर की बात बता दूँ आपको, गस्साला बोला जाता था घर पे, आज भी गस्साला बोला जाता है, क्योंकि हमने उस चीज़ को जब देखा जाना तो गस्साला ही के नाम से जाना। तो नई नई चीज़ें जब आ गई, वॉशिंग मशीन, अब उसके लिए अल्फाज आप, ये तो मॉडर्न ही में आएगा ना, फिर वो तो आपको क्लासिकल रूट, आपको रूट वहीं से मिलेगा। अगर आप उसके रूट पे जाएंगे तो आपको रूट वहीं मिलेगा जो कि क्लासिकल अरबिक ही है, उससे हम हट के नहीं जाएंगे, उसी से ड्राइव करके यहाँ तक पहुँचे।
एमए वालों का पार्टिसिपेंट कम नज़र आ रहा है। ये सवाल है, लेकिन सवाल से पहले मैं अपना एक इनपुट देना चाहूँगा कि जो एक मॉडर्न है, ये जेएनयू की बहुत जो है हॉट जो है डिस्कशन थी कि मॉडर्न लैंग्वेज, जो मेरे मरहूम थे और मैं भी उसी ग्रुप में मैं भी आया हूँ कि जो मैं मानता ही नहीं हूँ कि जो कोई मॉडर्न है, अरबी ज़बान में कोई मॉडर्न नहीं। उसकी वजह यह है, इसकी दलील भी है, दुनिया की जो ज़बान है तो जो ग्रामर है दो चीज़ों से बनती है, एक जो सर्फ है और नौ, सर्फ और नौ है। दुनिया की ये बाकायदा, ये कोई मेरा अपना कोई मजहबी या मेरा कोई रिलीजियस मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है, बल्कि एक लैंग्वेज और एक लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक रिसर्च बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस बात को कह रहा हूँ। दुनिया की सबसे ज़्यादा जो रिचेस्ट जो मॉर्फोलॉजी है वो अरबी की। ये कोई, फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मेरा कोई इसे जज्बाती या कोई मजहबी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ये मैं एक रिसर्च की बुनियाद पर कह रहा हूँ। दुनिया की सबसे जो रिचेस्ट मॉर्फोलॉजी है, जो सर्फ है, वो जो है अरबी की। उस रिचनेस की बुनियाद पर जो इश्तिकाक का जो मादा और जो इश्तिकाक की जो बुनियाद जो सबसे ज़्यादा जिसके पास है, वो अरबी ज़बान के पास है। तो मॉडर्न कुछ नहीं है। जो बहुत जेएनयू की तारीख में सबसे ज़्यादा जो मॉडर्न था, जो मरहूम हो गए, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भरे, जन्नतुल फिरदौस उनको जगह दे, बहैसियत टीचर, तो जेएनयू के उसमें स्टाफ में मेरे नज़दीक सबसे मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ और सबसे देने वाले जो उस्ताद थे वही थे जिनका नाम था प्रोफेसर एहसान रहमान साहब। बहुत मॉडर्न थे। मॉडर्न होने के बावजूद भी उन्होंने कैटेगोरिकली रिजेक्टेड द टर्म ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज इन अरबिक टर्म। तो उन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकली रिजेक्ट किया कि अरबी में कोई मॉडर्निटी नहीं है, इसलिए कि वो इश्तिकाक की बुनियाद पर वो चीज़ों को वो क्या नाम है वो एकोमोडेट करती चली जाती है और उसी बुनियाद पर वो बनाती हुई और अपने रास्ते को तय करती चली हुई जाती है। एक चीज़ जब जेएनयू में मैं जब पहुंचा तो वहाँ पर मुझे बहुत पुरानी इंग्लिश बुक मिली। उसके बाद उसको वो समझी भी नहीं आया, पूरी जो है उसकी स्पेलिंग ही अलग पूरी। मैंने पूछा भाई कुछ लोगों से, अपने आपके जो मुआसिरीन थे उनके कॉन्टेक्ट में आया कि भाई ये कौन सी ज़बान है। नजर में तो थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी मैंने पढ़ी थी, लेकिन ये वाली अंग्रेज़ी तो नहीं पढ़ी। तो उन्होंने बहुत कायदे से समझाया कि अरबी इंग्लिश ज़बान पर जो अदबार गुजरे, अगर वो ज़बान अगर यहाँ पर ला करके जो अगर किसी वो अगर किताब रख दी जाए तो लोग इनकार कर देंगे कि इंग्लिश ज़बान ही नहीं है। लेकिन ये कोई दौर हमारी अरबी ज़बान पर ऐसा नहीं गुजरा कि क्या नाम है वो 50 या 200 साल के बाद आकर के ये कह दे कि नहीं, इसके अंदर तो अब क्या नाम है कुछ तस्हीह की और तहसीन की ज़रूरत है, इसलिए कि ये समझ में नहीं आ रही। ये मरूल कैस के अशार उसी तरीके से अशार समझ में आ रहे हैं जिस तरह से क्या नाम है बिल्कुल कंटेम्प्रेरी जो हमारे जो पोइट्स हैं, जो शोरा हैं, उनकी ज़बान जिस तरह से समझ में आए। और उनके आज आप पढ़ेंगे जाकर के जब क्या नाम उनके ड्रामे और उनकी जो है लिटरेचर और उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन हमारे नहीं फ़र्क है। मैं पढ़ के कह रहा हूँ। अच्छा खैर, ये जो हमारा प्रॉस्पेक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ है, एक तो ये है कि एक अपॉर्चुनिटीज़ है, कहीं पर एक चीज़ अवेलेबल है, हम एक स्ट्रगल करके वहाँ पर पहुँचेंगे, उसको अवेल करेंगे, एक प्रॉस्पेक्ट है। दूसरा वही पर एक प्रॉस्पेक्ट है कि क्या नाम है किसी चीज़ को क्रिएट करें, जो है क्या नाम है एक ऐसा चैप्टर हमारे पास होना चाहिए। इसलिए कोई भी चीज़ जो अवेलेबल हो एक सिचुएशन पॉइंट को पहुँचेगी, सिचुएशन पॉइंट को पहुँचेगी, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं पर एक दूसरा प्रॉस्पेक्ट क्रिएशन और जनरेशन ना करना हो तो फिर क्या होगा? इसके लिए क्या मतलब हमारे पास लाया अमल यही नहीं, बल्कि एक आफाकी तौर पर हमारे पास क्या है। तो अरबों का ही इशू है कि वही उस चीज़ को डिस्कस करें, क्योंकि हमारी ये मदर लैंग्वेज तो है नहीं, ये इसका सबसे बड़ा रीज़न है। अपॉर्चुनिटीज हम वही हिसाब से देखते हैं जो चीज़ें वो अवेलेबल हमारे लिए करना है। अगर हमारी ये मदर टंग हो तो हम उसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब कुछ न कुछ क्रिएटिविटी आ रही है, लेकिन उसको भी हम कहीं ना कहीं उन्हीं के स्टेप को फॉलो करना है। कुछ नयापन उसमें लाने के लिए बहुत ही अबूर हासिल हो जाएगा, तभी कहीं ना कहीं कुछ उस पर लाया जा सकता है। और जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उससे नज़रअंदाज
करके अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, शायद वो हालात और होता है ना फाइनेंशियल सपोर्ट, वो सारी चीज़ें साथ नहीं देगी, इंसान फिर उससे कहीं ना कहीं डाइवर्जन का शिकार हो जाएगा। मुझे अपना जो है कि मदर टंग जिनकी है वही इस प्रॉस्पेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, चीज़ों को ला सकते हैं, हम उसको सिर्फ फॉलो कर सकते हैं, इल्ला कि वो हमारी मदर टंग बन जाए, लेकिन वो गवर्नमेंट सपोर्ट हो जाए, वो सारी चीज़ें हो जाए, तो यहाँ फिर अपनी लैंग्वेजेस का किया जाएगा। अरब खुद अपनी लैंग्वेजेस का करें, अगर वो करते हैं तो अच्छी चीज़ें, नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें तो हम लोग उन्हीं के मरहूने मिन्नत ही रहेंगे। हाँ, फिर वही होगा कि वो लोकल इस्तेमाल करेंगे और हम स्टैंडर्ड अरबिक इस्तेमाल करेंगे। स्टैंडर्ड अरबिक आज भी हिंदुस्तान की जो खदमात है उसे कोई नकार नहीं सकता। सर फुसहा कहीं बोली जाती है वैसे? जी? किसी कंट्री में फुसहा बोली जाती है आज भी? तो हर जगह बोली जाए, लेकिन आम तौर पे तकरीबन आमतौर पे वो भी डिपेंड करता है ना। जैसे मान लीजिए लिटरेरी महफिलें हैं, 10% आपको फुसहा बोली जाएगी। अब सऊदी में आपको मिसाल देता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पे भी स्टैंडर्ड अरबिक बोली जाती है। हाँ, मदारिस में, बाज़ारों में, अब वहाँ पे स्टैंडर्ड अरबिक का इस्तेमाल कम है। ऐसा नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि स्टैंडर्ड अरबिक का इस्तेमाल करते हैं आज भी, वरना फिर हर जगह परेशानी हो जाएगी। आपको किसी सूडानी से बात करनी है, आपको किसी मोरक्को के रहने वाले से बात करनी है, तो उनको फिर स्टैंडर्ड अरबिक ही का सहारा लेना पड़ता है। ये अपनी कोलोकियल बोलेंगे, वो अपनी डायलेक्ट में गुफ्तगू करेंगे, न ये पूरी तरह से बात समझेंगे ना वो पूरी तरह से बात समझेंगे, तो आपस में गुफ्तगू करने के लिए भी उनके पास। अच्छा, एक नई चीज़ अगर एक बार और मैं बता दूँ, उन्होंने एक नई लैंग्वेज भी डिस्कवर कर लिया, जो कि सिर्फ इंडियन, पाकिस्तानी या बिल्कुल जो अरबिक से नाबलद होते हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर ये पूछना हो कि आपके वालिद साहब की तबीयत कैसी है, तो गर्दन हिलाते हुए, जो हमारा एक मामूल रहता है, गर्दन हिलाते हुए पूछते हैं के फालबू, या दरअसल उन्हीं के वालिद साहब के बारे में पूछना चाहते हैं। तो एक नई लैंग्वेज उन्होंने क्रिएट की है, जिसका खामियाजा ये हो रहा है कि यहाँ के जो वर्कर्स जाते हैं वो सोचते हैं कि हम वहाँ की कोलोकियल सीखनी है, जबकि वो कोलोकियल नहीं है, वो तीसरी जुबान सीख कर चले। आई थिंक सर यही उन लोग की ज़बान भी डाइल्यूट कर दी है इसी चीज़ ने, मतलब इतने सारे माइग्रेंट जो चले गए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना, रुख सीधा भी आ गया, अब वो अपने कोलोकियल में ये सीधा भी इस्तेमाल करने लगे। बहुत से हिंदुस्तानी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। मैंने एक बुक इस पे लिखी है, लेटेस्ट स्पीक कोलोकियल अरबिक, लिखा हूँ ज़रूर, लेकिन मैं किसी से ये नहीं कहता कि आप कोलोकियल सीखिए। कम से कम एक बार पढ़ ले कि अगर अरबों से डायरेक्ट उनको बात करनी है तो हमको समझ में आए वो करना चाहिए। दरअसल कोलोकियल जो पाई जाती है सऊदी अरब में, क्या ऐसा भी है कि एक खित्ता दूसरे खित्ते को नहीं समझता है कोलोकियल में? नहीं समझता है, इस्तेमाल नहीं इसके लिए समझता है, ऐसा नहीं समझता, खासतौर से पूरा गल्फ एक दूसरे को अच्छी तरह से समझता है। हाँ, मार्को की, लीबियन की, बहुत से ऐसे डायलेक्ट हैं जो नहीं समझते। या मिस्र की? नहीं, मिस्र की भी तो मैं बता देखिए, मिस्र जो हुआ ना, जैसे हिंदुस्तान से वर्कर जाते हैं वहाँ, और उसी तरह से मिस्र का भी हाल। जिद्दा एक तरह से हयुल बलद है, वो सभी लोग वहाँ या कि यकजा होते हैं। तो अगर हम, जैसे मैं जिद्दा में रहा, तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमको गल्फ की भी कोलोकियल से कुछ शुद्ध बुद्ध हुई, और इधर इजिप्शियन वगैरह जैसे इज़ाइक वगैरह क्या बोलते हैं, सूडानीज वगैरह का जो है काफ को मतलब को कैसे जो तब्दील करते हैं, बस और वो तकरीबन एक दूसरे से वाकिफ होते हैं। मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि वो आप रिश्ता भेजाएंगे तो रिश्ता भी मिल जाएगी, चाहे आप परेशान हो, रिश्ता भेजा के मिल जाएगी, आप डायरेक्ट उससे इस्तेमाल करेंगे। सर, इनका सवाल था कि कुरान मजीद में जो है ये अरबिक लैंग्वेज में जो ऐसे साउंड ढ ये साउंड्स क्यों नहीं कैच किए अरबिक लैंग्वेज में? तो सर, कुरान जो जब नाजिल हुआ तो कुरान में आपने ही किताब दी थी सर मुझे कि कुरान में ऐसे अल्फाज जो फॉरेन लैंग्वेजेस से आए हुए हैं, इब्रानी से और यूरोपियन लैंग्वेजेस से, तो जो ऐसे साउंड्स है ट ढ वगैरह साउंड्स नहीं है, क्योंकि कुरान की जो एजाज था वो समाअत में था। कोई रिटर्न बुक, तो कुरान की पहली रिटर्न बुक थी, तो कोई भी ऐसा टफ वर्ड जो हमारी समाज को गिरा गुजरे वो कुरान में नहीं है। इसीलिए लोग जो कुरान सुन के एक्सेप्ट कर लेते कि इट्स अ वर्ड ऑफ गॉड, तो वो है। और इसीलिए अल्लाह ताला अरबी मुबीन कहता है, मतलब जो अरबी ज़बान है कुरान के लिए भी यही मुबीन लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और इसीलिए अरबी ज़बान के लिए भी जैसे कि एक लफ्ज़ है सिज्जील, तो कहा जाता है कि ये फारसी से है, संग गिल उसका मतलब जो अरबिक फिलोलॉजी है वो
जब हम डीप में स्टडी करते हैं उसकी, क्योंकि तमाम ज़बानें सिस्टर्स लैंग्वेजेस हैं, तो संगे गिल जो है ग साउंड नहीं है, क्योंकि हमारी समाज को गिरा ना गुजरे, तो सिजील वो हो गया है, तो अरबाइज्ड हो गया है वो। तो मतलब ये ऑलरेडी हमारी जो अरबिक लैंग्वेज है वो मोस्ट मॉडर्न लैंग्वेज है, जिसमें दूसरी ज़बानों को लेकर उसको अरबाइज्ड करना पहले से मौजूद है और दूसरी लैंग्वेजेस में लेकर आए हैं। हमेशा से हर ज़बान का ज़बान से लेते हैं। हाँ, लेकिन सर अरबिक लैंग्वेज मतलब कुरान के अंदर इटसेल्फ कुरान की बात अलग है, जी, ज़बान का लेन-देन हर वक्त चलता है। सिस्टर्स लैंग्वेजेस ऑलवेज, कहेंगे कि हाँ, अरबी ने दिया है, ये अरबी मदर लेकिन है। सर वो लेकर ये बात साबित हो गई कि ये जो सुपीरियरिटी ऑफ अरबिक लैंग्वेज दिया है जी, सुपर तो वो लैंग्वेज हुई। हाँ अरबिक लैंग्वेज, देते तो होते ना सुपर आप हाँ, जी, जी, yes, पर्शियन ने सिंजील से सीखा, हाँ, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। yes, ऑफिस yes, में लोग होते हैं उसी को बोलते हैं। हाँ, वही चीज़ है, मतलब आप अरबी से तमाम उसकी अहमियत के बावजूद लिंग्विस्टिक में जब हम जाएंगे तो ये नहीं कहेंगे कि ये हमारी वाहिद है। हाँ नहीं, लिंग्विस्टिक अलग, इसीलिए अरबी के दो ब्रांच हैं, इल्मुल लुगा और एक फिकुल लुगा और इल्मुल लुगा। फिकुल लुगा एक अलग चीज़ है और इल्मुल लुगा एक अलग चीज़ है, दोनों को आप मिक्स नहीं कर सकते। सर क्या ये दोनों चीज़ प्लीज थोड़ा सा वो लिंग्विस्टिक है एक, लिंग्विस्टिक फिकुल लुगा लिंग्विस्टिक है, इल्मुल लुगा डिक्शनरीज। सर दरअसल ये लोग है ना ढ पे रुक कर रहे हैं, लेकिन ये लोग ये नहीं इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जैसे कि उस वक्त जो ज़बान बोली जाती थी उस पर कुरान शरीफ जो नाज़िल हुआ है, तो वो जो मतलब वो बताया जा रहा है। हम लोग टॉपिक से बहुत हट रहे हैं। देखिए असल मसला ही नहीं है, हमारा कुरान से कोई बिना देना, कुरान एक अथेंटिक बुक है, कुरान के बारे में कोई सवाल नहीं कर सकता है, उसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने रखी है। अब वो सब कहानी यहाँ पे वो नहीं, यहाँ पे बात हो रही है कि हाँ लैंग्वेज अपॉर्चुनिटी। सर मुझे उसी से रिलेटेड कुछ पूछना था कि आपने अपॉर्चुनिटीज की बात की, बट ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज मेल को मिलती है, तो मतलब अगर अरबिक लैंग्वेज सीख रहे हैं तो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर द वुमेन, बिकॉज अरबिक वर्ल्ड में औरतों के लिए कोई जॉब नहीं दिखता। मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन आपके लिए बहुत ऑप्शन, ऐसा नहीं है, और जो एफएससी में जो ऑप्शन है वो औरतों के लिए भी है, लड़कियां भी काम करती हैं, लेकिन ये अलग बात है कि उसमें साउंड नहीं है, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। There are not so much opportunities for the women, like वहाँ पे जाके कुछ करने के लिए नहीं मिलता है ना, ऐसे मतलब वहाँ पे जाके कुछ करने के लिए क्या मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा मौका मिला, आप साउंड हो जाएगी, स्किल आपके अंदर अगर आ गई, अगर ट्रांसलेशन ही में आ जाए, लैंग्वेज आपकी आप ऑनलाइन जॉब कीजिए ना, उससे बेहतर क्या, जाने की जरूरत ही ना पड़े। यही तरह कि आप मिडिल ईस्ट की तमाम जो सर्विसेज हैं आप यहाँ से भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बिजनेस उनसे डायरेक्ट आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक मिसाल दे दूँ, इलाहाबाद में मैं एक खातून को जानता हूँ जिसको किसी ने नहीं देखा अभी तक, और वो 4 गाड़ियाँ चलाती हैं, 4 गाड़ियाँ, 4 ड्राइवर, उनके वो गाड़ियाँ चलती हैं और गाड़ियाँ आती हैं तो घर में पार्क हो जाती हैं, जीपीएस से वो पूरी तरह से फॉलो करती हैं सब, कौन कहाँ रुक गया उसको भी जो है फोन चला जाता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, आप घर में बैठ कर भी काम कर सकते हैं, बस वही स्किल होना चाहिए। बट मेरा क्वेश्चन ये कि अभी तक अरब वर्ल्ड में ऐसा कुछ ऐसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं अब तो है। बहुत आ रहे हैं, अब तो कुछ नहीं है, करो ना, जो नया विजन उनका आया है, या जो विजन आया 2030 वाला, उसमें तो सिर्फ औरतों को ही लेडीज का तो सर कोटा होता है फीमेल का, और मोस्टली तो मैन ये शिकायत करते हैं कि लेडीज को प्रेफर किया जा रहा है। Because I don't know that. I'm asking you. आप इससे किसी भी एयरपोर्ट पे जाइए 60% लेडीज हैं। वो अलग चीज़ है कि हिंदुस्तानियों को मौका नहीं मिल रहा है, वो अलग मसला है, लेकिन लेडीज हैं और वो उसके लिए आपको स्किल होनी चाहिए। स्किल नहीं होगी तो मिलने का मौका है, आपको में साउंड होना होगा तभी मिलेगी। Thank you. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुमताज़ मकसूद अहमद काजी, मैं मोटर वूमन हूँ, सेंट्रल में ट्रेन चलाती हूँ, सबअर्बन ट्रेन। मैं CST से थाने ट्रेन चलाती हूँ। कभी कभी मेरी गाड़ी डोंबिवली भी रहती है, एयर कंडीशन जो गाड़ी है वो डोंबिवली रहती है, कभी कल्याण पनवेल भी पहले बहुत बार चलाती थी, अभी मोस्टली थाने रहती है। लेकिन 20 नवंबर से मैं लोको पायलट मेल की ट्रेनिंग में हूँ, मेल ट्रेन की ट्रेनिंग में हूँ। मैंने इधर से अरबिक का कोर्स किया था, तो मैं कोई सेंटेंस अरबिक और इंग्लिश में दोनों बोलना चाहती हूँ कि सब लोग समझ सकें। अना मुमताज़ मकसूद अहमद काजी, आई एम मुमताज़ मकसूद अहमद काजी,
Ana Shaikh Al-Kitar Fi Al-Sakuk Al-Hadid Al-Markaza. I am train driver in Central Railway. I am driving suburban train from 32 years. Kunta Akul Kitar Al-Dawahi Fi Mumbai Min 19 hours. I am driving suburban train. अच्छा सर एक चीज़ है, तदरीस को क्या निकाला यानी वज़ाइफ की तदरीस सर बिला जा रही है फिर बिलाते जा रही है। तो आजकल तो बहुत ही कम हो चुका है। पहले ये होता था कि आप मैं बताऊँ, मेरे वालिद साहब खुद वहाँ अरबिक की ग्रामर के उस्ताद थे, तो अरबों को अरबी पढ़ाना था। अब तो ऐसा नहीं है ना, अब तो वो अरब डायरेक्ट खुद ही पढ़ा रहा है। अब सब्लाइजेशन जो हो गया उसको ये बहुत परेशानी है। वज़ाइफ तदरीस बहुत ही टेक्निकल अगर आप होंगे, मतलब MCA वगैरह की हो या ये जिसमें उनके पास अपनी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे जो केमिस्ट्री या साइंस वगैरह की सब्जेक्ट उसमें मिलती है, आपको लैंग्वेज में नहीं है। सर अरबी को उर्दू में उर्दू के लिए कोई ट्रांसलेशन अच्छी बुक है क्या आपके हिसाब से, सीखने के लिए, अरबी सीखने के लिए उर्दू? मुझे मेरी नज़र से नहीं गुजरी है। क्या उर्दू में किताब चाहिए अरबी सीखने के लिए? हाँ हाँ, बहुत सी किताबें हैं। वही किताब ट्रांसलेशन की भी है, कैसे तर्जुमा करें ये सब, लेकिन वो असल में ज़्यादातर इंग्लिश में है तो बहुत हाँ होता है। तो आप किसी को इंशाल्लाह बता देंगे। हैं चीज़ें अरबी सीखने के लिए हैं काफ़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद साहब, डॉक्टर महमूद साहब, आप लोगों ने एक अच्छा लेक्चर सुना। और अपने सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज मैं इतना बड़ा हाल भरा देख रहा हूँ, मेरा हाल भर गया है। ये शायद मेरे 10 साल में पहला मौका हो कि जिसमें इतने लोग आए हैं। उसमें गालबन हमारे में ज़्यादा मेहनत हमारे डिप्लोमा और डिप्लोमा टीचर्स की है। लोगों के बहुत से बच्चे वो नज़र आ रहे हैं जो इससे हैं, क्योंकि पहला इत्तेफाक है। मैं देख रहा हूँ कि पार्ट टाइम कोर्सेज के बच्चे यहाँ हैं। मैं आप लोग दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग आया करें, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ज़िंदगी में वक्त किसी के पास नहीं है, किसी के पास ऐसा नहीं जो कहे कि मैं फ्री हूँ। आपको कहीं ना कहीं से निकालना होगा, और निकालने की वजह वही है कि आप तरजीह किस चीज़ को देते हैं। आपको वक्त लगता है कहाँ हम ज़ाय कर रहे हैं और कहाँ फ़ायदा का। अभी मिसाल के तौर पे मुझे अभी गाड़ी पकड़नी होगी तो मैं जॉब वॉब छोड़ के सब पकड़ लूँगा। तो चूँकि हम इसको सानवी समझते हैं, सेकेंडरी समझते हैं, इसलिए मुझ पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। अब मैं सदारती कलमात के लिए प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने सदारती कलमात फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो महमूद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत ही मुफीद और मालूमाती चीज़ें आपसे शेयर किया, बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया, और आपको ये पता चला कि अरबिक के सीखने के बाद में कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, कहाँ कहाँ पे आप जॉब तलाश कर सकते हैं। और आप लोगों ने अपने सवाल भी पूछे जिसका उन्होंने बहुत ही तशफ़ी वक्त जवाब दिया। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा हटके है लेकिन इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है। मेरा मानना ये है कि सीखना, जितने भी सवाल आए और जो कुछ हुआ सवाल, वो मुझे ऐसा लगा कि बहुत बेसिक पे फोकस है। बहुत बेसिक का मतलब ये कि हमको अभी कैसे बोलने आए, हमको आसानी से जॉब कैसे मिल जाए। पहली चीज़ ये है कि कोई भी चीज़ अगर आप सीखना चाहते हैं दुनिया में, अंदर कोई भी चीज़, तो सबसे पहले आपको अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा। टारगेट बहुत ही ज़रूरी है।
मतलब ये कि आप ये तय कर रहे हैं कि हम अरबिक सीख क्यों रहे हैं। अब अगर आप अरबिक सीख रहे हैं किसी स्टोर पे सेल्समैन का काम करने के लिए, तो अब आपके सेल्समैन के जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना पड़ेगा, उन चीज़ों को सीखना पड़ेगा। अब उसकी जगह पे आपको कुरान नहीं पढ़ना है, बल्कि उसके जगह पे आपको क्या करना है कि सेल्समैन के रिक्वायरमेंट क्या है, वहाँ पे किस तरीके के सेंटेंसेस बोले जाते हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होती हैं, उन सब का ध्यान में रखना है और उसी तरीके से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। अगर आप ट्रांसलेटर बनना चाहते हैं तो उसका एक अलग हदफ है, उसके लिए एक अलग तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना पड़ेगा। अगर आप लिटरेचर में काम करना चाहते हैं तो लिटरेचर का जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपको अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ ये कॉमन सी बात नहीं है, ये कॉमन सा एरिया नहीं है, बहुत महदूद जगह नहीं है। अरबी का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें इसमें है। अगर कल्चर की बात करें या तो कल्चर के तबाह से देखेंगे बहुत बड़ा एरिया और इसका पीरियड भी बहुत बड़ा है। आप देखिए जमाने जाहिलियत से शुरू होता है और आज तक चला आ रहा है, और फिर एरिया वाइज हर एक की अलग अलग कल्चर की चीज़ें हैं जिसमें किताबें हैं। तो ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसके ऊपर रिसर्च किया जा सकता है, काम किया जा सकता है। लेकिन अब चूंकि आप बिगिनर्स हैं, आप लर्नर्स हैं, अभी आप सीख रहे हैं, तो सीखते वक्त अभी अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप अपना टारगेट तो सेट करो। यहाँ पे टारगेट नहीं सेट होता है और हम भागे चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं, कभी कुरान पढ़ने लगते हैं, कभी हदीस पढ़ने लगते हैं, तो कभी अखबार पढ़ने लगते हैं, कभी यूट्यूब पे सुनते हैं, कुछ भी सुनते हैं। ठीक है, वो उससे आप हमको सीख तो मिलती है, लेकिन उसको आप अप्लाई कहाँ करेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, मेरा अपना मानना यह है कि नॉलेज एक अलग चीज़ है और एप्लीकेशन एक अलग चीज़ है। नॉलेज वाला आदमी उतना तरक्की नहीं करता है जितना वो आदमी तरक्की करता है जो उसके एप्लीकेशन को समझता है। मिसाल के तौर पे जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन आप किसी को देख रहे होंगे, वो अरबों का मालिक है, लेकिन क्या उसके पास उतनी नॉलेज है? नहीं। उसकी एक सपोर्टिंग टीम है जो उसको नॉलेज दे रही है। उसके अंदर कितने PhD होल्डर हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने IAS ऑफिसर हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको नॉलेज दे रहे हैं, वो उसको अप्लाई कर रहा है और वो कमा रहा है। और जो उसको नॉलेज दे रहा है वो कितना पा रहा है? 2 लाख सैलरी, और वो कितना कमा रहा है? बिलियन। तो जो अप्लाई करना है वही असल चीज़ है। वही चीज़ आप रिलीजन में भी ले सकते हैं। सबको मालूम है कि नमाज पढ़ना है, कामयाब वही है जो नमाज पढ़ लेता है। किसको नहीं मालूम है कि नमाज पढ़ना जरूरी है? कौन नहीं जानता है? कौन मुसलमान ऐसा होगा जो नहीं जानता है कि नमाज पढ़ना जरूरी है, फर्ज है? सबको मालूम है, लेकिन अप्लाई कौन करता है? कामयाब कौन होता है? जो फर्ज है। इसी तरीके से एप्लीकेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अब अगर आपका टारगेट सेट हो गया है और आपका ये तय हो गया है कि हमको फला फील्ड में जाना है, तो उस फील्ड के क्या रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कीजिए, उसी से मुताबिक काम कीजिए और इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। अप्लाई करना सीखिए। ओके, तो मुझे बस यही छोटी सी बातें करना कहनी थी और बहुत महमूद साहब का फिर एक बार शुक्रिया। जब भी आते हैं तो बहुत ही अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बहुत ही अच्छा मालूमात शेयर करते हैं और उसमें मैंने जो चीज़ें इजाफा की है अगर आपको पसंद आए तो आप अपनी ज़िंदगी में नाफिज कीजिए। नो प्रॉब्लम, हम लोग डेली बोलते ही रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महमूद साहब। और उनसे ज़्यादा उनसे मेरे दोस्त हैं, जूनियर हैं, उनसे ज़्यादा आप तमाम लोगों का जो लोग मौजूद हैं, आप लोगों को आने की वजह से मैं बहुत मशहूर हूँ। आपको अल्लाह जज़ाए खैर दे और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी तशरीफ बनाएंगे।
मैं अपने बहुत ही सीनियर अलीगढ़ से तशरीफ लाए हुए मेहमान जो इस वो इत्तेफाक से बॉम्बे में रहते हैं, डॉक्टर फखरुद्दीन साहब का बहुत मशहूर हूँ, वो अपने साथ एक मेहमान भी लाए हैं माशाल्लाह। आप वहाँ एज ए प्रोफेसर रिटायर्ड हुए हैं, इस वक्त बॉम्बे में मुकीम हैं। और मैं तमाम तलबा जो चाहे वो एम ए के हों चाहे पार्ट टाइम के हों उनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं जो पार्ट टाइम कोर्स हैं उनके असातिज़ा का खास तौर से शुक्रगुजार हूँ कि उनकी मेहनतों से आज कामयाब रहा। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रहेगी मुलाकात होगी। अब ये समझ में आया कि सनीचर को करने को कुछ फ़ायदा होगा, तो आइंदा इंशाअल्लाह सनीचर को ही प्रोग्राम रखा जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। चाय वगैरह है, आप लोग चाय वगैरह